اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے پڑوسی ملک پاکستان کے عالمی عالم دین، مشہور مبلغ، مفکر اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے مرحوم عاصم جمیل کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل تلمبا میں مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی آبائی گاؤں میں تدفین عمل میں آئی۔ اسکرین پر آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے عاصم جمیل کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 9 بجے کے بعد تلمبا میں تدفین عمل میں آئی۔ نماز جنازہ خود حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھائی۔ اس دوران طارق جمیل صاحب کے جتنے متعلقین ہیں اور سوگوار ہے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کا حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے تو یہ خبر پھیلی کہ انہیں کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، لیکن مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے ویڈیو جاری کر کے اس کی تردید کی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈپریشن کے شکار تھے اور مسلسل انہیں الیکٹرک شاک لگایا جا رہا تھا۔ کل اچانک انہوں نے گھر کے باہر کھڑے گارڈ سے اسلحہ لے کر اپنے سینے میں مار کر خودکشی کر لی۔ وہیں مولانا طارق جمیل کے بھائی نے خودکشی کی تردید کرتے ہوئے ویڈیو بیان میں کہا کہ عاصم کی موت اتفاقی طور پر ہوئی ہے، اس نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے بلکہ وہ گن صاف کر رہے تھے اور گولی اچانک سینے میں پیوست ہو گئی۔ دوسری جانب خاندانی ذرائع کے مطابق مولانا عاصم جمیل کی موت گن صاف کرتے اچانک گولی چلنے سے ہوئی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیس کے دعووں کے برعکس مولانا طارق جمیل کی ٹویٹر پوسٹ میں بھی واقعے کو حادثہ قرار دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO ملتان سے رپورٹ طلب کی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شواہد اور رپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تعین کیا جائے۔ آئین دوسری بڑی خبر غزہ، فلسطین، اسرائیل اور حماس کی جنگ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ گزشتہ کل غزہ کے نواح میں اسرائیلی فوج نے شکست کھایا۔ صلاح الدین اسٹریٹ پر گھمسان کی جنگ اسرائیلی آتنکوادی فوج اور مجاہدین میں ہوئی۔ اس جنگ میں کئی لوگ مارے گئے، جی ہاں، اور کئی شہید ہو کر جنت کے حقدار بن گئے۔ خیر، مزاحمت کاروں نے، مجاہدین نے غزہ کو صہیونی اسرائیلی یہودی آتنکوادی امریکی فوج کا قبرستان قرار دیا۔ یعنی مجاہدین نے کہا کہ ہم نے صہیونی اسرائیلی آتنکوادی فوج کا غزہ کی سرزمین کو قبرستان بنا دیا ہے۔ وہیں پر اسرائیلی حملے میں ایک
कैंसर अस्पताल पूरा तबाह हो गया। अल कुदस को खाली करने की धमकी दी गई है। हमास ने यरगमाल खवातीन की वीडियो नश्र की जिसमें वो औरतें यानी इजरायली खवातीन कैदियों के रिहाई के लिए फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा नेतन्याहू यानी इजरायली पीएम से कर रही है। वहीं पर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसे नफ्सियाती प्रोपेगेंडा करार दिया है। खैर, हमास की कैद में इजरायली खवातीन की वीडियो जारी कर नेतन्याहू से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई करने वाली वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने अल कुदस और अश-शिफा अस्पतालों के करीब बमबारी की है जिसकी वजह से इमारतें लरज उठी। मैंने आपको गुज़िश्ता कल भी बताया था कि इजराइल की आतंकी फ़ज़ाई बमबारी की वजह से सैकड़ों इमारतें गिर चुकी है, तबाह हो चुकी है, ज़मीं बोस हो चुकी है। अल कुदस अस्पताल में 14,000 अफराद मौजूद है। बच्चों और औरतों से कॉरिडोर भरे हुए, जबकि अल कुदस अस्पताल की तरफ आने वाले रास्ते भी बमबारी में तबाह हो गए। ताज़ा हमले में 450 इमारतों को निशाना बनाया गया। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए दिन बड़ी अजीब और गरीब खबर आ रही है। जी हाँ, रूसी इलाके दागिस्तान के शहर मखाज किले के एयरपोर्ट पर तिल अबीब से यानी इजराइल से आने वाले प्लेन पर लोगों ने हमला कर दिया। एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई और यहूदी मुखालिफ नारे भी लगने लगे। 20 लोग जख्मी बताए जा रहे, 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी आप इस खबर से समझ सकते हैं कि इजरायली और यहूदियों पर अब पूरी दुनिया में लोग कितना गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इजरायली, अब तो ऐसा हो गया कि इजरायली और यहूदी अमरीकी आतंकवादियों ने इतने मासूमों का खून बहाया है कि पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग इजराइल और यहूद के खिलाफ हो चुके हैं। अगर मार्केट में कहीं पता चल जाए कि ये इजरायली कुत्ता है, ये यहूदी कुत्ता है, तो लोग मारेंगे, ऐसा खबरों से लग रहा है। और यही हाल हुआ है रूसी इलाके दागिस्तान के एयरपोर्ट पर कि जब लोगों को पता चला कि तिल अबीब से यानी इजराइल से कोई प्लेन आया है तो लोगों ने वहां पर एयरपोर्ट पर प्लेन पर हमला कर दिया। एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई और यहूदियों के मुखालिफ नारे लगने लगे। और यही नहीं बल्कि खबरें आ रही है कि लोगों ने फलस्तीनी परचम हाथों में लिए हुए थे और लोग इजराइलियों को तलाश कर रहे थे कि कहीं तल अबीब से आने वाली परवाज में कोई इजराइली तो नहीं। धावा बोलने की वजह से एयरपोर्ट पर भगदड़ का माहौल बन गया। पुलिस के साथ भी भिड़ंत हो गई जिसमें 20 अफराद जख्मी हुए हैं और 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हुक्काम ने इस वाक़े की वजह से हवाई अड्डे को बंद कर दिया और परवाजों का रुख भी मोड़ दिया। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, भले ही इंटरनेशनल आतंकवादी मीडिया, हमारे यहाँ का कुछ आतंकवादी मीडिया जो इजराइल के, अमेरिका के तलवे चाटता है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, जो आका के इशारों पर चलता है, वो बताएं ना बताएं, लेकिन खबरें आ रही है कि इजराइल का आतंकवाद और इजराइल और अमेरिकी फौजियों का आतंकवाद खुलकर सामने आ रहा है। और कितना आतंकवाद का नंगा नाच इन्होंने खेला, ये रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। जी हाँ, गजा मीडिया ऑफिस ने अफसोसनाक एदाद शुमार यानी आंकड़े गिनती जारी कर दी है। बताया गया है कि मुसलसल इजरायली आतंकवादी बमबारी की वजह से खबरें आ रही है कि इजरायली आतंकी हर किसी को निशाना बना रहे हैं। मुसलसल बमबारी से 116 से ज्यादा तिब्बी अमला यानी मेडिकल सर्विस करने वाले अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक आतंकवादी, सहयूनी और यहूदी इजरायली फौज कि वहशियाना बमबारी के नतीजे में अब तक सिविल डिफेंस यूनिट्स के 18 अरकान और 35 सहाफ़ी जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं और इजरायली आतंकवादी फौज ने 80 सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। वहीं पर अब तक यानी 7 अक्टूबर से लेकर गुज़िश्ता कल
यानी 30 अक्टूबर तक इजरायली बमबारी में 47 मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं, 7 गिरजा घरों को नुकसान पहुंचा है। बमबारी में 203 स्कूल, 80 सरकारी ऑफिसेज, 32,000 के करीब इमारतें और 2,20,000 घर नीस्तो नाबूद हो गए हैं। यानी यह रिपोर्ट है इजराइल के आतंकवाद की और अमेरिका के आतंकवाद की, जो दुनिया का आतंकवादी रखेल गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आ रही है। जी हाँ, मैंने आपको गुज़िश्ता कल भी बताया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाजी आंदोलन और मुजाहरे हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइंदा इलेक्शन से पहले वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान दूसरे रोज भी झड़पें जारी रही। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के घरों पर छापे मारने का सिलसिला भी जारी रखा। पार्टी के तर्जुमान जहीरुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 3,000 पार्टी कारकुनों और हामियों को हिरासत में लिया गया था। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर हबीबुर रहमान ने कहा कि BNP रहनुमा मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। और बताया जा रहा है कि मिर्जा फखरुल इस्लाम से पुरतशद्दुद वाक़यात के बारे में पूछगछ की जाएगी। एक पुलिस अफसर और मुजाहिरीन में शरीक एक शख्स भी इन पुरतशद्दुद आंदोलन मुजाहिरों में हलाक हो गया था और तकरीबन 26 पुलिस एम्बुलेंस को आग लगाई गई या नुकसान पहुंचाया गया था। इन तमाम चीज़ों के बारे में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से पूछगछ की जाएगी।